الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک سے نوازا ہے۔ ہم ماہ مبارک کے آخری عشرہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس آخری عشرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں بہت زیادہ محنت کرتے۔ جس طرح آپ اس عشرہ میں محنت کرتے، دوسرے عشرہ میں آپ اتنی محنت نہیں کرتے۔ اس عشرہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو کمر کس لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اذا دخل العشر شد مئزرا واحیا لیلا وایقظ اہلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عشرہ میں داخل ہوتے تو کمر کس لیتے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے، مستعد ہو جاتے۔ اس عشرہ میں آپ بہت زیادہ جد و جہد کرتے، آپ بہت زیادہ محنت کرتے، آپ بہت زیادہ عبادات انجام دیتے۔ اس عشرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگتے، شب بیداری کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کی فضیلت کی مناسبت سے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال انجام دیتے تھے، جن میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ اس میں عبادات، دعا، مناجات، قرآن کریم کی تلاوت، یہ عشرہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے۔ اس عشرہ کے اندر جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک مستقل سورت نازل فرما دیا ہے قدر کے نام سے۔ اور قدر کا جو مطلب ہوتا ہے عزت والی رات۔ لیلۃ القدر سے مراد عزت والی رات، برکت والی رات، یا ایک دوسرا معنی اس کا تقدیر بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں ہر محکم اور ہر مضبوط کام کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الدخان میں بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے تھے۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد یہی شب قدر والی رات ہے، جس رات میں اللہ رب العالمین ہر مضبوط اور محکم کام کا فیصلہ کرتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر مضبوط کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر، جو خلائق کی جو تقدیر ہے وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے شروع میں آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا وہ ہے، اور ایک ہوتا ہے ایک تقدیر وہ جو اللہ رب العالمین نے لوگوں سے گواہی لی، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سبوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اور ایک تقدیر جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے، تو وہاں 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، کیا کمائے گا، نیک بنے گا، برا بنے گا، یہ سب ساری چیزیں لکھی جاتی ہے، جو عبداللہ ابن مسعود سے حدیث ہے۔ اور ایک تقدیر جو سنوی ہے، سنوی تقدیر یعنی سالانہ طور پہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، کون کیا کمائے گا، نہیں کمائے گا، یہ تقدیر لیلۃ القدر کے اندر کیا جاتا ہے، اور اس کا فیصلہ لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ مرنے والے ہیں، اس کی تقدیر، اس کی روزی یہاں سے ملے گی، اس کی روزی وہاں سے۔ یہی رات ہے جس میں سالانہ فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک روزانہ کے حساب سے ہوتا ہے، یومی طور پر، یومی ہر دن کا الگ الگ تقدیر لکھا جاتا ہے، کیا کرے گا، نہیں کرے گا، کیا کمائے گا، نہیں کمائے گا۔ تو یہ جو رات ہے یہ بہت ہی عزت والی رات ہے، یہ بہت ہی احترام والی رات ہے، یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن کس رات میں اترا، کب اترا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ القدر میں بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، وما ادراک یعنی آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا، وما ادراک کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ما ادراک، جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہے، جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس کا جواب اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ جہاں کہیں بھی
वमा अदराक जहाँ कहीं कुरान में आया है उसका जवाब आपको बतला दिया है, लेकिन जहाँ कहीं कुरान में वमा युद्रीका आया है उसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नहीं बतलाया है। जैसे क़यामत के बारे में आता है कि क़यामत का इल्म वमा युद्रीका लअल्ल साअत तकूनु करीबा, क़यामत जहाँ युद्रीका आता है वमा युद्रीका आता है उसका जवाब यानी क़यामत के बारे में आपको नहीं बतलाया गया। तो अदरा का जहाँ आता है उसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया है कुरान करीम की बहुत सारी सूरतों में। वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, वमा अदरा का फला फला फला, इस तरह से आप दूसरी सूरतों में आप देख सकते हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जवाब दे रहा है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र की कितनी फजीलत है मेरे भाई, आप अंदाज़ा लगाएं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, उलमा इसके बारे में बताते हैं कि इस यानी 1000 महीनों से मुराद 83 साल 4 महीने बनते हैं। यानी लैलतुल क़द्र की रात छोड़ करके उसकी जो ज़िंदगी है एक रात की इबादत 83 साल 4 महीने के बराबर है। इस रात की इतनी फजीलत है कि जिस रात के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़रिश्ते पे दर पे उतरते हैं, फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात में फ़रिश्ते और फ़रिश्ते के साथ रूहुल अमीन जिब्रील उतरते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर के आते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर हुक्म के साथ वो नाजिल होते हैं। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, ये रात सलामती वाली रात होती है, पूरी की पूरी रात ये खैर व बरकत वाली रात होती है। फजर तुलू होने तक ये रात सलामती से भरी होती है। इस रात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे, तमाम छोटे गुनाह। जहाँ अमलों से गुनाह माफ़ होने की बात कही जाती है वहाँ सगायर का है, कबायर के लिए तौबा शर्त है, तो अमलों से जहाँ गुनाह माफ़ होते वहाँ सगायर है। इस रात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तहर्रौ लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। इसी तरह से बाज़ रिवायत के अंदर है इल्तमिसु, आखिरी अशरे को लाजिम पकड़ो या आखिरी अशरे में ढूंढो। तो ये जो रात है ये आखिरी अशरा की ताक रातों में से कोई एक रात है। ताक रात से मुराद वो रात जो बेजोड़ हो, जैसे 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, इन 5 रातों में से कोई एक रात शब कदर की रात होती है। किसी एक रात को खास करना कि 27 की रात ही शब कदर होती है तो ऐसा नहीं है। कभी 27 की रात में भी हो सकती है, कभी 21 की रात में भी हो सकती है, कभी 29 की रात में भी हो सकती है, जैसे कि सहाबा के दौर में भी यह मसला पेश आया। और एक सहाबी तो ये कहने लगे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, कि जो पूरे साल इबादत कर लिया तो गोया कि उसने लैलतुल क़द्र पा लिया। तो एक सहाबी ने कहा ना, उबय बिन काब ने, कि नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये लैलतुल क़द्र रमज़ान में है और लैलतुल क़द्र वो 27 की रात में है। तो उस रात का मामला या उस टाइम का मामला था कि 27वीं की रात में ये लैलतुल क़द्र थी। लैलतुल क़द्र ये मुंतकिल होती रहती है, सिर्फ 27 की रात को खास करना ये सही बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ रिवायत लैलतुल क़द्र के बारे में, आखिरी अशरे के बारे में, आप एक हदीस के अंदर देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अशरा में आपने ढूंढा, आपको लैलतुल क़द्र वाली रात हासिल नहीं हुई, फिर आपने दूसरे अशरा में ऐसी मेहनत की, फिर उसमें भी ये रात हासिल नहीं हुई, फिर आपने फरमाया कि आखिरी अशरे में तलाश करो। बाज़ रिवायत के अंदर ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी 9 रातें जब बाकी रह जाए तो लैलतुल क़द्र तलाश करो, फिर 7 रातें रह जाए तो उसमें तलाश करो, फिर 5 रातें रह जाए तो उसमें तलाश करो। मजमूई एतबार से पता चलता है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में हमें ढूंढने की ज़रूरत है। अगर किसी के पास टाइम है, आखिरी अशरा अगर वो इबादत करे या आखिरी अशरा से फ़ायदा उठाए
पूरी रात में अगर कोई जागता है तो ये और अच्छी बात है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में खुसूसी तौर पर बहुत सारे काम अंजाम देते थे। इस अशरा में जाग करके आदमी ज़्यादा से ज़्यादा नेकी लूट सकता है। ये 10 दिन या 5 दिन का मामला है, ज़िंदगी में बहुत ही ये बेहतर से बेहतर आपके लिए चांस है कि क्या मालूम है कि अगला रमज़ान आपको नसीब हो या ना हो। आप अगला रमज़ान आने से पहले पहले मर जाइए, क्या मालूम, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आप इन रातों में जो ये आखिरी अशरा की जो रातें हैं, इन रातों में जाग करके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप बरकतों से मालामाल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से आप मालामाल हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी जागे, दूसरों को भी जगाएं इस रात के निशानी के बारे में या दुआ के बारे में कि कोई ख़ास दुआ इस रात में पढ़ी जाने वाली है। एक रिवायत जो तिरमिज़ी के अंदर है जिस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है और ये कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी दुआ लैलतुल क़द्र में साबित नहीं है। वो हदीस के जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं ये रात पा लूँ तो मैं कौन सी दुआ करूँ, तो आपने फरमाया कि ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद फरमाता है, लिहाजा तू मुझे माफ़ कर दे। तो ये जो रिवायत है बाज़ उलमा ने इसको सही कहा है और बाज़ उलमा ने कहा कि ये साबित नहीं है। जो रावी हज़रत आयशा से रिवायत करता है उसकी सिमा हज़रत आयशा से साबित नहीं है, लिहाजा उमूमी तौर पे ये कहा जाएगा कि आप कोई भी दुआ करें, कोई दुआ ख़ास न करके आप जो भी मांगना चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मांग सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो तलब करना चाहे आप तलब कर सकते हैं। और ये जो रात है, इस रात के निशानियों के बारे में लोगों में बहुत सारी बातें पाई जाती है कि इस रात में कुत्ता नहीं भौंकता तो ऐसा होता है वैसा होता है। सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है जिसे ये पता चलता है कि शब कदर वाली रात की जो सुबह होती है उस सुबह में सूरज में शुआ नहीं होती, ये चीज़ है। और कुछ एक दूसरी रिवायत के अंदर कुछ इस तरह से कि ये रात मोतदिल होती है, न ज़्यादा ठंडी और न ज़्यादा गर्मी होती है। हाँ, अलबत्ता एक हदीस के अंदर ये आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं मिट्टी और पानी में सजदा कर रहा हूँ। तो शब कदर वाली रात से मुराद ये भी है कि हो सकता है कि शब कदर वाली रात में बारिश भी हो, ये कोई बईद बात नहीं है। तो शब कदर के लिए हमें जुस्तजू करने की ज़रूरत है, हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। हम इस रात की खैरात व बरक़ात हासिल करने के लिए अज़्म कर लें और जो भी हमारी ज़िंदगी के अयाम इस महीने से मुतल्लिक़ बाकी है, इस महीने में हम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करें। और अमाल क्या है, आप कसरत से कुरान करीम की तिलावत करें। बात सलफ़ से आता है, सुफियान सौरी वगैरह कहा करते थे कि इस रात में नमाज से बेहतर दुआ है, नमाज से बेहतर दुआ है। तो दुआ को आप मत भूलें, दुआ को सबसे अहमियत दें। आप नमाज के साथ साथ आपके पास टाइम है दुआ करें, या नमाज में अगर आप नमाज भी पढ़ते और दुआ करते हैं सजदा में जा करके, क्योंकि हदीस के अंदर आता है अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदा से सबसे ज़्यादा करीब हालत सजदा में होता है। फ़अक्सिरू दुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ क्या करो, सजदा में जाकर आदमी दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। ये बहुत ही इज़्ज़त वाली रात है, बहुत ही एहतराम वाली रात है, ये बहुत ही बरकत वाली रात है। इस रात से हमें कसरत से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है।